ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشهادا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تسليم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبدتم ألا أنتم عابدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. खाना खाने की सुन्नत है। नंबर 1 दस्तरखान बिछाना। नंबर 2 दोनों हाथ घंटों तक धोना। नंबर 3 एक जानू या दो जानू बैठना। नंबर 4 तेल लगाकर न खाना। नंबर 5 खाना खाने से पहले की दुआ पढ़ना। नंबर 6 दाएं हाथ से खाना। नंबर 7 3 उंगलियों से खाना। नंबर 8 अपने सामने से खाना। नंबर 9 बहुत ज्यादा गर्म न खाना। नंबर 10 खाने में ऐब न निकालना। नंबर 11 अगर लुकमा गिर जाए तो उठाकर खा लेना। नंबर 12 बर्तन और उंगलियों को चाट कर साफ करना। नंबर 13 खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ना। नंबर 14 खाना खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। पानी पीने की सुन्नत है। नंबर 1 दाएं हाथ से पीना। नंबर 2 बैठ कर पीना। नंबर 3 देख कर पीना। नंबर 4 बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना। नंबर 5 3 सांस में पीना। नंबर 6 पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। सोने की सुन्नत है। नंबर 1 ईशा के बाद जल्दी सोने की फिक्र करना। दुनिया की बातें न करना। नंबर 2 सोने से पहले कपड़े तब्दील करना। नंबर 3 बावजूद सोना। नंबर 4 सोने से पहले बिस्तर झाड़ कर सोना। नंबर 5 3 सलाई सुरमा लगाना। नंबर 6 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ना। नंबर 7 तस्बीह फातिमी
सुभानअल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ना। नंबर 8 सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना। नंबर 9 दाहिनी करवट किबले रुख लेट कर हाथ रुखसार गाल के नीचे रखना। नंबर 10 पेट के बल ना लेटना। नंबर 11 सोने की दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहिया, सोकर उठने की सुन्नत है। नंबर 1 नींद से उठते ही दोनों हाथों से चेहरे और आंखों को मलना। नंबर 2 सोकर उठने की दुआ पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। नंबर 3 मिसवाक करना, घर में दाखिल होने की सुन्नत है। नंबर 1 घर में दुआ पढ़ते हुए दाखिल होना। नंबर 2 घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त लेना या खटखटाना या दरवाज़ा खटखटा कर इब्तिदा देना। नंबर 3 घर में दाखिल करना। नंबर 4 घर वालों को सलाम करना, घर से बाहर निकलने की सुन्नत है। नंबर 1 घर से बाहर निकलने की सुन्नत है। नंबर 1 घर वालों को सलाम करके निकलना। नंबर 2 पहले बाया पैर बाहर रखना। नंबर 3 घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़ना। सल्लल्लाहु मौलाना कासिम। माशाअल्लाह। मौलाना हमारे जावेद नकवी की तरफ से 100 रुपये इस बच्चे को इनाम कर दिया। और ये बच्चा जो है और इसका छोटा भाई, ये बच्चे हिफ्ज़ भी शुरू कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो ये मस्जिद में नमाज भी पढ़ाएं। इस तरीके से ये बच्चे तैयार हो गए। इनके माँ बाप का भी साथ है और ये बच्चे भी ताउन कर रहे हैं। जैसा हमारे वक्त चाहिए, मदरसा जैसा इनसे मांगता है, बिल्कुल उसी तरह इनका ताउन रहता है हमारे साथ बच्चों के तालीम के सिलसिले में। इसलिए वालिदैन का भी मुबारकबाद। मैं इसके छोटे भाई अफ़ान अज़मत अली खान सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ, वो तशरीफ़ लाए और अपनी कारकर्दगी आप हज़रात के सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह हम तेरी पाकी का इकरार करते हैं, व बिहम्दिका और तेरी तारीफ बयान करते हैं, व तबारक अस्मुका और तेरा नाम बहुत बरकत वाला है, व तआला जद्दुका और तेरी बुजुर्गी बहुत बरतर है, वला इलाहा गैरुक और तेरे सिवा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह ताला की पनाह लेता हूँ शैतान मरजूम से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह ताला के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर किस्म की सब तारीफें अल्लाह ताला ही के लायक है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम फरमाया है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, न उनके रास्ते पर इन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ और न गुमराहों के रास्ते पर। आमीन। ऐ अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि वो यानी अल्लाह ताला यगाना है। अल्लाहु समद, अल्लाह ताला बेनियाज है। लम यलिद व लम यूलद, उससे कोई पैदा नहीं हुआ और ना वो किसी से। वलम यकुल लहू कुफुवन
हदीस नंबर 21 मन तहबा लुक़्वतन फलैसा मिन्ना, जो किसी दूसरे की चीज छीन ले वो हम मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 32 अफ़ज़लुल अमाली इंदल्लाहि सलातु फी अव्वलि वक़्तिहा, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अफजल अमल अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना है। हदीस नंबर 33 मनी दुआउ मा लैसा लहु फलैसा मिन्ना, जो किसी दूसरे की चीज का खुद के लिए दावा करे वो हम मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 34 इज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिद, अल्लाह ताला की खुशी वालिद की खुशी में है। हदीस नंबर 35 अस्सकिय्यु करीबुम मिनल फ़ारी करीबुम मिनल जन्नह, सच्ची आदमी अल्लाह ताला के करीब होता है, जन्नत में करीब होता है। हदीस नंबर 36 कल्लम यशकुरिन नासा वलम यशकुरिल्लाह, जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं किया। हदीस नंबर 37 अल कलिमतु तय्यिबतु सदका, अच्छी बात सदका है। हदीस नंबर 38 मन अताअनी दखलल जन्नह, जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। हदीस नंबर 40 तलबुल हलाली वाजिबुल अला कुल्लि मुस्लिम, हलाल रोजी तलाश करना हर मुसलमान पर वाजिब है। हदीस नंबर 40 मा नक़सत सदक़तुन मिन माल, सदका माल को कम नहीं करता। खाना खाने की दुआ बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह, शुरू में दुआ करना भूल जाए तो ये दुआ पढ़े बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु, खाना खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, दूध पीने के बाद की दुआ अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिन, इल्म हासिल करने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया, बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, बैतुल खला से बाहर निकलने की दुआ गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नी अज़ा व आफ़ानी, सोने से पहले की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, सोकर उठने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर, सुबह होने की दुआ अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, शाम होने की दुआ अमसैना व अमसल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ अल्लाहुम्मा इफ्तहली अब्वाबा रहमतिक, मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, घर में दाखिल होने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलदी व खैरल मख़रजी, बिस्मिल्लाहि वलदना व बिस्मिल्लाहि ख़रजना व अला अल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवहा लहा, यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन
يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله مولانا العظيم. माशाअल्लाह। अब जिया सगीर से ये बच्चे की माशाअल्लाह हर चीज़ याद है। अब ये भी आपके सामने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे इंशाअल्लाह। सूरतें तर्जुमे के साथ पढ़ेंगी, ये सना से लेकर के पूरे कौसर तर्जुमे के साथ सुनाएंगी और सारी सूरतें जो है आपको याद के लिए इसलिए सुनाएंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह हम तेरी पाकी का इकरार करते हैं, व बिहम्दिका और तेरी तारीफ बयान करते हैं, व तबारक अस्मुका और तेरा नाम बहुत बरकत वाला है, व तआला जद्दुका और तेरी बुजुर्गी बहुत बढ़कर है, वला इलाहा गैरुक और तेरे सिवा कोई
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं अल्लाह ताला की पनाह लेती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की सब तारीफें अल्लाह ताला ही के लायक है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर्रहीम। बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिकी यौमिद्दीन। रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमको सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम फरमाया है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। ना उनके रास्ते पर जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ और ना गुमराहों के रास्ते पर। आमीन। ऐ अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको कौसर अता की है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। बस तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बेशक तुम्हारा दुश्मन ही बेनामो निशा हो जाने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 100। कितना पढ़वाएंगे? 31 से तुमने वो सूरह फलक सूरह नास से पढ़ सो। हाँ? कितने सुना रहे? थोड़ी सुना दो हदीस सबको मालूम है क्या है। हदीस नंबर 31। मन इद्दआ मा लैसा लहू फलैसा मिन्ना। जो किसी दूसरे की चीज छीन कर ले वो हम मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 32। अफ़ज़लुल अअमालि इंदल्लाहि अस्सलातु फी अव्वल वक़्तिहा। अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल अमल अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना है। हदीस नंबर 33। मन इंतहबा नुहबतन फलैसा मिन्ना। जो किसी दूसरे की चीज का खुद के लिए दावा करे वो हम मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 34। रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिद। अल्लाह ताला की खुशी वालिद की खुशी में से। हदीस नंबर 35। अस्सखिय्यु करीबुम मिनल्लाहि करीबुम मिनल जन्नह। सखी आदमी अल्लाह से करीब होता है जन्नत के करीब होता है। हदीस नंबर 36। मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं किया। हदीस नंबर 37। अल कलिमतु तय्यिबतु सदका। अच्छी बात सदका है। हदीस नंबर 38। मन अताअनी दखलल जन्नह। जो शख्स मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। हदीस नंबर 39। तलबुल हलाल वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिम। हलाल रोजी तलाश करना हर मुसलमान पर वाजिब है। हदीस नंबर 40। मा नक़सत सदक़तुम मिन माल। सदका माल को कम नहीं करता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खाना खाने की दुआ। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। शुरू में दुआ पढ़ना भूल जाए तो ये दुआ पढ़े। बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। खाना खाने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। दूध पीने के बाद की दुआ। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिन। इल्म हासिल करने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी
बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। बैतुल खला से बाहर निकलने की दुआ। गुफ्रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाबा रहमतिक। मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। घर से बाहर निकलने की दुआ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। घर में दाखिल होने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलदी व खैरल मखरजी। बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कितना पढ़ेंगे बेटे? पूरे 4 सूट के पढ़ लो। चलो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्आदियाति क़दहन फल्मुरियाति क़दहन फल्मुगीराति सुबहा फअसरन बिही नक़अन फवसतन बिही जमआ। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। अफला यअलमु इज़ा बु'सिर मा फिल क़ुबूर व हुस्सिल मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराका मल क़ारिअह यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इह्निल मनफूश फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ग़ीशतिन राज़ियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराका मा हिय नारुन हामियह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। माशाअल्लाह। यकीनन ये जो 4 बच्चे आखिर के आए थे, ये बच्चे भी काबिल मुबारकबाद है और उनके वालिदैन भी काबिल मुबारकबाद। वालिदैन इसलिए काबिल मुबारकबाद हो जाते हैं क्योंकि वालिदैन की जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है, वो पाबंदी के साथ भेजते हैं। इस बच्ची ने बीच में 6 महीने गैप भी किया था, फिर उसके बाद वापस आकर अभी 6 महीने हो गए। उन 6 महीनों में फिर से पढ़ना, 10 तारीख नाजरा भी हो गए हैं और हिफ्ज़ भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह करीब अल्लाह ने चाहा तो ये हाफिज़ा भी हो गए।
इस इदारे की पहिया हाफिज़ तो बहुत हो गए इस इदारे से अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह मैं अब प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी खामोशी रखिए। मौलाना शफीक अहमद कासमी साहब, हमसे पहले ये जो 4 बच्चे आए थे 2 मिनट आगे आइए। जिया, मौलाना जावेद नकवी साहब की तरफ से 100 रुपये हदिया इस बच्चे को दिया जा रहा है। और इमरान, एक मिनट जिया, इमरान, अफान और रेहान, इन 4 बच्चों को मोहम्मद हरीमुल्लाह शेख साहब, जमीयत उलमा हिज़्बुल्लाह पटना के नायब सदर है, हमारे अजीज़म हमद मोहतरम चाचा है, उनकी तरफ से 250 रुपये लिए तकसीम कर रहा हूँ। 4 बच्चों को 250 रुपये। अब मैं हमारे मौलाना शफीक अहमद कासमी साहब बराबर करके आप से बहुत ही अदब दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएँ और अपने नासराना कलिमात से हम सबको और यहाँ पर बैठी हुई ख़वातीन, आए हुए माँ बाप को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आप जमीयत उलमा इस्लामाबादी के नायब सदर हैं मौलाना शफीक अहमद कासमी साहब। फिर महमूद मुजाहिद साहब नायब सदर जमीयत उलमा जिला पूना से तशरीफ लाए, सामने आ जाए। हमारे बुजुर्ग शायर है, शायर से सामने उनका शेर है, चाहे जिस लाइन का हो, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, इंसान को तरक्की देता है। इसमें जिस लाइन के अंदर महारत हासिल उसको लेकर लाता है। दुनिया भी एक है, पूरा करना चाहता है, और पूरी एक है और लाता है दुनिया और दोनों करना चाहता है। और अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को तमाम मखलूक़ात के ऊपर के आला और अफजल जो बनाया है, वो इसी वजह से कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, वअल्लमा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा, कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों का इल्म देकर सिखा दिया। और फरिश्तों से पूछा कि भाई आप इन चीज़ों का मालूमात हमें दो। उन्होंने कहा मुख्तसर ये कि चाहे दुनियावी हो चाहे दीनी हो, इंसान को जो है तरक्की देते हैं। और इनमें दीन की हैसियत इस वजह से बढ़ जाती है कि दीन जो है हमारी आदत को बना। आज हम इस इल्म को जो है
बचपन का जो है पौधा है वो पत्थर पर लकीर के जैसा है। और जब इंसान पक्की उम्र में आ जाता है फिर उसका एक जो है उनको तो होता है, सीखता है, बार बार भूल जाता है। वो ऐसा होता है जैसे हमने पानी के ऊपर कुछ लिखा फिर वो उसका भूल गया। तो बच्चों की तालीम के लिए बहुत इन बातों की जरूरत है। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जो माँ बाप है जो अपने बच्चों की तालीम के ऊपर जो काम करें वो काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह ताला हम सबको जो है अपने बच्चों को जो है दीनी तालीम देने की जो तौफीक अता फरमाए। हम इसको मामूली ना समझें, दुनियावी एतबार से तो दीनी एतबार से अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि जब बच्चा सबसे पहला लफ्ज़ माँ बाप उसको जो है अल्लाह का नाम सिखाता है वो ज़बान से प्यारी ज़बान से अल्लाह का नाम लेता तो कहता है अल्लाह। जैसे माँ बाप जो है बच्चे बोलते हैं बेटा बोलो अल्लाह, छोटा सा रहता है उसको बात भी जबान भी सही से निकली है उसको अल्लाह अल्लाह प्यारा सिखला है। उसने जैसे ही अल्लाह का नाम लिया तो अल्लाह ताला उसके माँ बाप को। इसी तरीके से जब वो 10 गाह के अंदर पहुँचता है उस गाह के साथ छोटा बच्चा है तो उसकी ज़बान में है ना रही उसको बिस्मिल्लाह पढ़ा तो वो किया। जैसे ही वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है उसके बारे में भी आता है अल्लाह वाला उसके माँ बाप। तो मामूली चीज़ है ये दुनिया जो है पानी है वो आखिरत में हमेशा हमेशा। आज अगर हमने अपने बच्चों को देखो अभी आपके सामने दुआएं हदीसें इसके अंदर उन्होंने इतना बड़ा जखीरा जो है आपके सामने पेश कर दिया। अगर हम इसको लेकर गौर से सोचें इसके अंदर इतनी मालूमात की कि अगर उसको कोई बयान करना चाहे तो अब तो क्या महीनों तक जो है उसको बयान करना चाहिए। इतनी मालूमात छोटे छोटे बच्चे जो है या तो अपनी ज़बान में जो है उन्हें सुनते सुनाए या दुआएं सुनाए। और दुआएं जो है आज हमने जो है अपने मामलात में से दुआओं को छोड़ दिया तो जिसकी वजह से ये मामूल हुआ कि आज हमारी ज़िंदगी जो है परेशानियों से गुजर और उनके अंदर जो है तालीम जो है हर घर में बीमारियों से परेशान, हर घर के अंदर हालात हैं, हर घर के अंदर जो है परेशानियाँ हैं, घरों के अंदर बीमारियाँ हैं, तकालीफ से गोचार है। अगर हम इन दुआओं को अपनाएंगे और हम सुबह शाम की जो दुआएं हैं, सोने की उठने की जो दुआएं हैं, बैतुल खला में जाने की वहाँ से निकलने की जो दुआएं हैं, तो सफ़र की जो दुआएं हैं, सफ़र में जाने की, सफ़र में जो है चलने की जो दुआएं हैं, ये दुआएं जब हम पढ़ते हैं अल्लाह ताला की बात के अंदर दुआ है। अल्लाह ताला दुनिया के शुरू और फितर से शैतान और जिन्नात के शुरू और फितर से इंसान और शैतान के शुरू और फितर से हम सब की बात करते हैं। तो हम अपने बच्चों को और तवज्जो के साथ साथ जाहिर सी बात है ये मदरसा जो है आपके सामने 2-4 साल के अंदर तो माशाअल्लाह मुबारक तैयार हो। हम तो सिर्फ अपने बच्चों को भेज रहे हैं और बच्चे आकर को तालीम है, लेकिन जो इसके अंदर मेहनत कर रहे हैं जिन्होंने इसमें कुर्बानियाँ दी बच्चों को बुलाकर जो पढ़ा रहे हैं तो कुर्बानियाँ कितनी है तस्वुर की नहीं कर सकते। दिन और रात जो है भागदौड़ कर रहे हैं इसके लिए उम्मत के बच्चों के ये छोटे छोटे मदारिस जो है वो काफ़ी हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले उलमा ने बड़ी घुमाई के अंदर ये तकरीबन 1000 से ज़्यादा मदरसे 1000 से ज़्यादा जिसको ये है वक्त की हुकूमत जो चलाया उस वक्त की हुकूमत थी वो चला और हुकूमत को मुसलमानों की हुकूमत ज़्यादातर की हुकूमत। लेकिन अंग्रेज़ बहादुर जो पूरा यहाँ हिंदुस्तान के अंदर आया उसने सबसे पहले देखा कि भाई मुसलमान जो है आज तक जो है इस पर हमने कानून इस तरीके से नहीं पाया। उन्होंने देखा कि इनके अंदर एक तालीम आम है, मकानी का निज़ाम आम है, उलमा से ताल्लुक आम है। उन्होंने जो है तालीम को मदारिस को ख़त्म किया यहाँ तक कि उलमा को जो है फांसी पर चढ़ाया और कोई दरख्त ऐसा बात नहीं जिस पर जो उलमा की जो है उलमा को फांसी पर चढ़ाया। तो बतलाने का मकसद ये है कि सब
काले पानी की जो सजा दी है उनके साथ उनके जानशी शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद बंदी शेखुल अजीज दारुल देवबंद वो भी मौजूद है। तो आकर उन्होंने जो उम्मत को सबक दिया है वो जो है जेल के अंदर दो वाले सब एक तो कुरान का और एक पता का। अगर तुम्हारे अंदर इमान जिंदा है, आप यूरोप के अंदर जाते हैं, हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता लोग, हमसे ज़्यादा मालदार लोग, हमसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग, लेकिन जो बका है हमारे मुल्कों के नजरिए से छोटे छोटे मदारिस हैं, छोटे छोटे मकान वहाँ उनकी तनख्वाहें कितनी होती है 15,000 30,000। अगर ये चाहे तो बिजनेस करके जो है अच्छे से अच्छी तरक्की हासिल कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत के लिए अपने जो वक्त की अपने जो टाइम की कुर्बानी दे रहे हैं, तो हमें भी ये सोचना चाहिए नहीं पूरी कुर्बानी दे रहे हैं। हमारा हिस्सा जो है कि मदरसे के अंदर बच्चों के ऊपर हमें भी खर्च कर, क्योंकि ये जो है आसमान से तो उतर के मौजूद नहीं आएगा, उनको जो है जो पढ़ाएंगे और आसमान से उनके लिए जो है खाना उठेगा तो छुआ वो खाकर देंगे आपके बच्चों को, क्योंकि हमारे वर्तमान में इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है अपने जिस तरीके से घरों का ख्याल करते हैं, अपने घरों की जो देखभाल करते हैं, इसी तरीके से बस्ती के जो मदारिस से उनका ख्याल करते हैं। ये भी मदरसों में से मकतबों से एक है जिसमें दुनिया के एतबार से सबसे पुराना मदरसा सिर्फ ये मुंतकिल हो गया है नानापेट से अपने तलवर के अंदर, वरना तो सबसे पहली दस्तकार है मुनाही है, जिसके अंदर जो है कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोग हाफिज बने, कितने लोग जो है पढ़कर हाफिज बनकर जो आलिम बने होते, और कितने लोगों ने जो है पढ़कर जो है दीन को जो बनाया। तो आज ये हमारी बस्ती के अंदर आया, आज जो है इसकी तरक्की के लिए जितनी कुर्बानी हो सकती है, आज छोटे छोटे बच्चों को देखा, अगर इनमें से एक बच्चे की जिंदगी के अंदर जो है शीर आ गया तो उस्तादों की जरूरत काबिल फूलों की अल्लाह ताला की, और ये जो पूरी की पूरी मेहनत की जा रही है पूरे बस्ती के अंदर जो बच्चों को बुलाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, मेहनत क्यों लगे। इसी के साथ साथ दूसरी बात यह है कि हमारी बस्ती के अंदर जो बच्चा तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे को घर के अंदर जितनी भी बस्ती के घर है, कोई घर ऐसा खाली ना हो जाए जिसका बच्चा जो है प्रदान से अंदर आपसे जो है जिसका पूरा टाइम आता है मकान के अंदर जो है आपको जो 2 घंटे 3 घंटे या 1 घंटा स्कूल के एतबार से आप स्कूल पढ़ा रहे हैं, उसके बाद अपने बच्चों को जाके कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें, और बच्चों के उसी तरीके से उस्ताद जो है बच्चों के या यहाँ पे कुछ मिला उनका भी ख्याल करें। अगर हम चीज़ों का ख्याल करें तो इंशाअल्लाह ये छोटा सा मदरसा भाई का जो फरमान चलकर के हमारे लिए जो है तनाव और तरफ बनेगा, मतलब तनाव और तरफ बनेगा तो ऊपर के अंदर जो खैर खाई का जरिया बनेगा, तो ऊपर के अंदर जो खैर खाई आएगी उसके अंदर उसके सवाब होकर हम सब शरीक होंगे। जिसके लोगों ने अगर इसमें जो है 1 पैसा भी लगाया होगा वो भी इसका बात को समेटते हुए अल्लाह ताला ने मौका दिया बच्चों की बातें सुनने को मिली, तो हमारा जो है यही वो होना चाहिए कि हम जो है बच्चों के ऊपर जो है चाहे तरीके से जो है अपना सभी को बात करें और बस्ती के अंदर जो है बच्चों के आप बच्चों को हालात करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने भी आपको मुख्तसर वक्त में पास इसके साथ साथ आपके नासराना परिवार से मुस्तफिल हो, क्योंकि आपकी बेचैनी आपकी बेचैनी को देख रहा हूँ।
वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ व क़ाला अन-नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। मौसम सदर मोहतरम दीगर उलमाए किराम और बहुत सारे जमीयतुल उलमा ज़िला पुणे के ज़िम्मेदारान और मुअज़्ज़ज़ पर्दानशीन माँ और बहनों, अज़ीज़ तलबा, अब प्रोग्राम खत्म होने में है। तकरीर सुनना, पहले तो तकरीर करना ये बड़ा मुश्किल काम है और सुनना और मुश्किल है और उस पर अमल करना यह और ज़्यादा मुश्किल है। एक मरतबा एक आलिम साहब, पिछले दौर की बात है, एक बादशाह के खिलाफ कुछ बातें उन्होंने कही। अब बादशाह हर ज़माने में अच्छे और बुरे रहे। सब भी बादशाह गुजरे, जैसे आज भी है बादशाह गुजरे, तो उनसे कुछ गलतियाँ हुई तो मौलाना साहब ने उनके बारे में कुछ बातें कही। उनको मालूम हुआ कि मौलाना साहब हमारे बारे में कुछ बातें कह रहे हैं, लिहाजा उस वक्त उसके ज़माने में उसने सज़ा देने के लिए पिंजरा बनाया था, पिंजरा, और उस पिंजरे में वो भूखे शेर को रखता और जो गुनाह करता उस पिंजरे में उसको डालता। जब डालता तो फिर वो भूखा शेर उसको खा जाता, खून पी जाता और ख़त्म करता। लिहाजा मौलवी साहब ने जो बातें कही वो बादशाह को मालूम हुई। बादशाह ने कहा पकड़ कर लाओ, हमारे खिलाफ बातें हो रही है, लाओ पकड़ करके लाओ। और मौलवी साहब को लाया गया, पूछा ये तुमने कहा हाँ, जब कुरान में है, हदीस में है, शरीयत में है, फिर बादशाह क्या, बादशाह का बाप भी हो, हम सही बोलेंगे। उसको गुस्सा आया, उसने कहा अच्छी बात है, फिर हमने भी पिंजरा बनाया, शेर उसमें रखा हुआ है भूखा, अब तुम्हारी खैर नहीं, पकड़ करके मौलवी साहब को अंदर डाल दिया। लेकिन क्या देखते हैं, इस शेर जगह से हिला नहीं, खामोश तो हिलाते हुए बैठा। थोड़ी देर बैठा कि मौलाना साहब ने उसको इशारा किया, इधर आ। चुपचाप आया शेर, उसके कान में धीरे से कुछ बोले, वो चला गया, जाकर के बैठ गया। अब बादशाह ने देखा, लोगों ने देखा, मौलवी साहब तो खामोश बैठे हुए और शेर तो भूखा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। लेकिन लोगों को ये फिक्र पड़ी कि मौलाना साहब ने शेर के कान में बोले क्या, खामोश आके बैठा। बादशाह को समझ गया कुछ काम का आदमी है, शायद इसको अगर अपने ज़्यादा परेशान करें तो मुसीबत में आ जाएंगे, छोड़ दिया। लोग पीछे पड़ गए, अरे बताओ मौलाना साहब आपने क्या ऐसे शेर के कान में कहा? उसने कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं, माफ़ चाहते हैं, आप बताइए, हमसे भी कुछ गलती होगी, हमको पिंजरे में जब तक खेल देगा तो हम भी वो मंतर पड़ेंगे ना, बच जाएंगे, लिहाजा बता दो। बहुत इसरार करने पर मौलवी साहब ने कहा मैंने कुछ ज़्यादा मंतर विंतर पढ़ा नहीं, सिर्फ उसको कहा इधर आ, मैं मौलाना हूँ, खाना है मुझे। उसने कहा इजाज़त है तो खाऊंगा, बोले इजाज़त मिलेगी लेकिन घंटा 2 घंटा मेरी तकरीर सुनना पड़ेगी। शेर ने कहा तकरीर भी सुनना रुको और तुमको खाना भी रुको, मैं अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता। लिहाजा यही मामला है। बहरहाल मेरी अजीज माँ और बहनों, आप और जितने यहाँ बच्चे हैं और उनके सरपरस्त यहाँ वालिदा जो मौजूद है और जो उनको पढ़ाने वाले असातिज़ा
उस्ताद मोहतरम भी मौजूद है, ये बड़े काबिल मुबारकबाद है। आज के इस पुरफितन दौर में ये कोई मामूली दौर नहीं है। अब तक के जो ज़माना गुजरा, जो वक्त गुजरा, जो सदियाँ गुजरी, जो गुजरा वो गुजरा, लेकिन अब जो मौजूद है ये बहुत खतरनाक वक्त है दुनिया के ऊपर, क्योंकि ये फितरी दज्जाल का वक्त है। अब दज्जाल करीब है, क़यामत भी करीब है और सब खत्म होने वाला है। खत्म हो या ना हो, हमारी तुम्हारी तो कोई गारंटी नहीं। लिहाजा इस पुरफितन दौर में अपने बच्चों को सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप पर और दानिशोरों अकलमंदों पर और सारे मुसलमानों के जिम्मेदारों पर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि चाहे इंग्लिश पढ़ाए या ना पढ़ाए, चाहे कुछ पढ़ाए या ना पढ़ाए, लेकिन दीन की तालीम जरूर दें। क्योंकि देखो, मैं आप दुनिया से चले जाने के बाद न नमाज पढ़ सकते, न रोज़ा रख सकते, न हज कर सकते, न ज़कात दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, हमारा नाम आमाल बंद होगा। लेकिन एक शॉर्टकट 2-3 रास्ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि देखो, एक सदके जारिया कौन सा, कुरान को पढ़ना और पढ़ाना, ये एक चीज़ बाकी रहेगी। कुरान को पढ़ना और पढ़ाना ये एक चीज़ बाकी रहेगी, इसका सवाब आदमी जाने के बाद भी चलता रहेगा। दूसरा, कोई वक्त किया हो, ये आप जो मदरसा देख रहे हैं इसमें जिनके पैसे लगे या लगेंगे, ये वक्त हो गया अल्लाह के लिए। लिहाजा इस तरह के कामों में जो खर्च होता है मुसलमानों का पैसा, इसका भी सवाब चलता रहेगा, चलता रहेगा और चलता रहेगा। और तीसरा है नेक और सालिह औलाद, नेक और सालिह औलाद। और नेक और सालिह औलाद जब हमारी जाने के बाद भी हमारे बाद इस तरह की सूरतें पढ़ेंगे, दुआएं पढ़ेंगे, जो इनको आज मदरसों में मकातिब में सिखाई और पढ़ाई जा रही है, ये चीज़ें पढ़ने का सवाब ये बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन माँ और बाप के और दादा और दादी के और तमाम खानदान वालों के कब्र तक और हश्र तक, मीज़ान तक, यहाँ तक कि वो जन्नत में पहुँच जाए, वहाँ तक इसका सवाब चलता रहेगा, वहाँ तक चलता रहेगा। लिहाजा ये कोई मामूली बात नहीं है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे अपने बच्चों को इस तरह के मकातिब में, मदारिस में दाखिल करें। और अगर हम दुनिया की तमाम चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं तो इन चीज़ों पर खर्च करें, क्योंकि इसका हिसाब होगा। आज जो है ये उलमा को पता है कि आवाम इंग्लिश मीडियम में, हालांकि इंग्लिश के मुखालिफ हम नहीं है, खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। लेकिन मेरी माँ और बहनों गौर करो, अगर हमारे बच्चों ने सिर्फ स्कूल की तालीम हासिल की, किसी का इंतकाल हमारे घर में हो गया, कोई कहता है तेरी इंजीनियर की डिग्री लेकर पढ़ते बैठ, या 10वीं की डिग्री लेकर पढ़ते बैठ, या तूने ये किया वो किया, बोला फौरन हमारी ज़बान पर आता है, अरे किसको किसको कुरान पढ़ने आता, लो कुरान शरीफ पढ़ो। क्यों? कुरान शरीफ पढ़ने से सवाब मिलेगा जाने वाले को भी, मौजूद रहने वाले को। लिहाजा देखो, आज ये ठीक नहीं लग रहा है बज़ाहिर कि औरतें सामने बैठी हुई हैं, मर्द हज़रात यहाँ हैं, बच्चे यहाँ हैं। क्यों? इसलिए कि जगह की तंगी है। अगर इंतज़ाम माकूल होता तो ऐसा निज़ाम नहीं होता। लिहाजा इंतज़ामात करने के लिए भी हमको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे बच्चों की पढ़ने की जगह अच्छी हो, ज़्यादा हो, बड़ी हो, तकाज़ों को पूरा करने वाले हम लोग, क्योंकि ये चीज़ बाकी रहने वाली है। तो बहरहाल वक्त भी ज़्यादा है, ज़्यादा बात करने की गुंजाइश नहीं है। मुख्तसर में बस 2 मिनट में ख़त्म करता हूँ। लिहाजा एक मरतबा
का इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया। देखो ना, अपनी औलाद को और अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो फिर यही हाल होगा कि हम दूसरों की खुशामद करना पड़ेगी, खुशामद करना पड़ेगी। अगर हमने अपनी औलाद को पढ़ाया, वो खुद कभी तो शब बारात में, शब कदर में, रमज़ान में कभी तो कुरान खोल करके पढ़ेंगे, दुआ हमारे लिए करे या ना करे, लेकिन ज़िंदगी में हमने उनको पढ़ाया, हमने पैसे लगाए, ना भी करे हमारे लिए दुआ, तो दुआ करे तो बड़ी बात है। लेकिन अब अगला दौर ऐसा मुश्किल है कि कोई औलाद अपने माँ बाप के लिए दुआ करे, दुआ भी नहीं, भूल जाएगी। लिहाजा वो इंतकाल हो गया तो अब वो बड़े मियाँ चले गए कब्रिस्तान में। लेकिन 4 भाई थे, चारों ने सोचा कि बड़े मियाँ चले गए, अब चले गए, उनका क्या लेना देना। लेकिन छोटे वाले ने कहा कि नहीं, किसी हाफिज साहब को पकड़ करके लाता हूँ, कम से कम 4 कुछ तो मेरे बाप की कमर पर वो पड़ेंगे। लिहाजा वो गया तो उसको भीख मांगता हुआ कुर्ता टोपी वाला मेरा जो नकली है ना, आज भी मार्केट में बहुत नकली है, लिहाजा हर कोई कुर्ता टोपी वाला भी आलिम और हाफिज नहीं होता। नकली मेरा मिलने के बाद उसने कहा मेरे बाप का इंतकाल हुआ, जल्दी बच्चों खामोश रहो, मुझे बात को बंद करनी, खत्म, ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन अब अधूरी बात छोड़ दी है तो समझ में भी नहीं आई। लिहाजा उन्होंने क्या किया, ये कहा कि चलो मेरे बाप की कब्र पर पढ़ना है। अब ये नकली ने सोचा कि अच्छा मौका है, कोई उनके घर आलिम हाफिज नहीं, कोई उनके बस्ती में आलिम हाफिज नहीं, कौन गलती पकड़ेगा। लिहाजा चलो मैं ही बड़ा आलिम और हाफिज बन करके जाता हूँ। गया, जाने के बाद बताया कहाँ है कब्र, वहाँ कब्र है। अब क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ रहा है, ए अल्लाह तू जानता है मुझे कुछ नहीं आता, ए अल्लाह तू जानता है मुझे कुछ नहीं आता, बस ये पढ़ रहा है। दूसरे भाई ने देखा कि छोटे ने हाफिज लाया, मैं नहीं ला सकता मेरे बाप की कब्र पर, वो भी नहीं था, उसने पकड़ करके लाया। अब उसने भी सोचा कि चलो मौका अच्छा है। वो जब गया देखा, उसने कहा कि मेरे छोटे भाई ने हाफिज लाया, लिहाजा उसके बाजू में बैठ करके पढ़ो कोने में। उसने कहा कि भाई ये असली होगा। वो डरते डरते उसने जाकर के बैठा और सुना तो बोल रहा था अल्लाह तो जानता है, मैं कुछ नहीं जानता। तो इसने शुरू करा, जैसा तो वैसा मैं, जैसा तो वैसा मैं, जैसा तो वैसा मैं। अब दोनों की लगी रख। तीसरे ने सोचा कि चलो मैं क्यों ना लाऊं, उसने भी पकड़ करके लाया, उसने बिठाया कब्र के चौथे तीसरे जानिब। उसने सुना कि वो ये भी ओरिजिनल नहीं, वो डर रहा था और वो भी ऊंची पीछी लगा के आया हुआ, कुर्ता पैजामा पहन करके। देखा तो ये कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है। तो उसने भी शुरू किया, अंधी तकलीफ कब तक चलेगी, अंधी तकलीफ कब तक चलेगी। तीनों का रखना चालू है। और चौथा भाई गया और उसने कहा मैं क्यों ना लाऊं, उसने भी लाया, उसने लाके बिठाया और कहा कि पढ़ो ये 3 हाफिज तीनों भाइयों के, मेरा तू, लिहाजा तू भी जोर से शुरू कर। उसने सोचा कि ये ओरिजिनल हो गया, मैं नकली हूँ। जाके देखा तो ये कुछ पढ़ रहे हैं। वो कह रहा है अल्लाह तो जानता है मुझे कुछ नहीं आता। वो बोल रहा जैसा तो वैसा मैं। तीसरा बोल रहा आगे तकलीफ कब तक चलेगी। चौथे ने शुरू करा जब तक चलेगी चलने दो, जब तक चलेगी चलने दो, जब तक चलेगी चलने। ये है तो अब अगला दौर बड़ा खतरनाक आया है। लिहाजा अपने बच्चों को अगर ईमान पर और सही सलामत रखना है तो मकातीब में दाखिल करना है, उलमा के पास भेजना है, अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता करना है। अब तो उलमा कह रहे हैं अगर किसी के पास कुछ नहीं है, वो उसका सिर्फ घर है, उसका सिर्फ एक घर एक रूम है वो रहने का, अगर वो बेच कर वो अपने बच्चों को दीन की तालीम दे सकता है तो उसके लिए जरूरी कि वो दीन की तालीम दे, दुनिया की नहीं, कोई जरूरत नहीं। लिहाजा बहुत वक्त हो चुका है। अल्लाह ताला हम सबको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि
बच्चों सब खामोश हो। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم. हम सब के बुजुर्ग हमारे वालिद मोहतरम इस मदरसे के सरपरस्त जमीयत उलमा जिला पूना के सदर मोहतरम हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद बसाइरुल्लाह साहब, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, ख़वातीन हज़रात, तलबा-ए अज़ीज़, उनके वालिद, अभी तक आप लोग इस दारुल के तलबा व तालिबात के जो उन लोगों ने पूरे साल में, साल भर तो नहीं कहेंगे क्योंकि 5 महीने हो गए इस इमारत में आकर, और जो बच्चे यहाँ आए वो यकीनन नए हैं, तो 6 महीने और 5 महीने में जो कारकर्दगी बच्चों ने पेश की उससे महसूस हो रहे हैं। मेरा बोलना जरूरी नहीं था, दोस्तों के इसरार से बोल रहा हूँ। ये बच्चों का जो प्रोग्राम हुआ, ये मकातिब के प्रोग्राम जो होते हैं और मदारिस में पढ़ने वाले जो बच्चों के प्रोग्राम होते हैं यकीनन तवील होते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि बहुत लंबा वक्त किया है, लेकिन ये बच्चों के पढ़ने की जो खुशी होती है और उनको पढ़ करके जो इनामत हासिल करने की जो खुशी होती है वो मैं और आप महसूस नहीं कर सकते। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे यहाँ सूरह फातिहा का तर्जुमा सुना रहे थे, कोई सना का तर्जुमा सुना रहा था, और कोई बच्चा सूरह कौसर, कुल हुवल्लाहु अहद और इस तरह तर्जुमे सुना रहे थे सूरतों के साथ। जान मोहम्मद कुर्सी फारसी के एक मशहूर शायर हैं, उन्होंने एक शेर लिखा: बरोज़े क़यामत हर नस्ल कर दश्त नामरा मन्नी हाजिर बीशवम तस्वीर जाना बल दरबर। यानी क़यामत का दिन इतना सख्त होगा कि हर शख्स अपने नामा अमाल लेकर हाजिर होगा। जान मोहम्मद कुर्सी दूसरे मिसरे में कहते हैं कि हम भी जो है अपने महबूब की तस्वीर बदल में दबाकर आ जाए। चुनांचे हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे हमारे इस वतन अजीज़ के। आपके जानशीन फर्जंद अंजुमन हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस भी है, मुफक्किर भी है, मुफस्सिर भी है, मुनाज़िर इस्लाम भी है और एक बहुत बड़े आलिम हैं। जैसे कुरान दिया करते थे, मरज़ुल वफ़ात में पहुँच गए। जब मरज़ुल वफ़ात में पहुँचे हैं, आखिरी उम्र को पहुँचे, गालिबन दर्स आखिरी देने के लिए पहुँचे, तो आपने जान मोहम्मद कुर्सी के इन अशार को बदल कर पढ़ा। पहला मिसरा वही रखा, दूसरे मिसरे में ये कहा: मन्नी हाजिर मीशवम तफसीर कुरान दर बदल। यानी क़यामत के दिन हर शख्स अपने नामा अमाल लेकर हाजिर होगा और हम भी कुरान मजीद की तफसीर को बगल में दबाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के सामने हाजिर हो जाएगा। मतलब ये है कि उन्हें ये यकीन था कि जो तफसीर कुरान की मैंने खिदमत में है, इस तफसीर कुरान की खिदमत की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल मेरी मग़फ़िरत फरमाएगा।
यकीनन जो बच्चे आज कुरान करीम की छोटी छोटी सूरतों का तर्जुमा पढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में यही बच्चे खड़े होकर कुरान मजीद की तफसीर बयान करेंगे। और ये उलूम दीनिया मेरे और आपके रहने या नहीं रहने से नहीं चलेगा, बल्कि ऐसी नस्लें, जैसे कुरान मजीद की मैंने शुरू में आयत पढ़ी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला ने हाफिज़ कुरान को अपना लक़ब दिया। हाफिज़ अल्लाह के नामों में से, और अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अपनी ज़िम्मे ली। तो यकीनन मेरे पढ़ाने न पढ़ाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, आपके पढ़ने न पढ़ाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिन खत्म नहीं होगा। लेकिन इस पुरफ़ितन दौर में हमारी जिम्मेदारी ये है कि आने वाले वक्त में अगर हम चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारी औलाद पढ़ करके कुछ दुआ करे, तो वो इन्हीं मदारिस दुनिया में मिलेगा। यकीनन आज 8 घंटे हम स्कूल के अंदर भेजते हैं, उसके ऊपर ये बोझ बच्चों के ऊपर के 4 घंटे और ट्यूशन का बोझ डाला जाता है। फिर उसके बाद आकर के हमसे मुतालबा किया जाता है कि आप जो है 1 घंटा पढ़ा लीजिए, मौलाना एडजस्ट कर लें। तो हम आपसे मुअद्दिबाना दरख्वास्त करना चाहते हैं कि मदरसे का जो वक्त है उस वक्त में आप भेजिए, ताकि आपका बच्चा जब दीन सीखेगा तो यही बच्चा कल आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो हाथ उठाकर आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेगा। उस कब्र की अंधेरी रात में कौन आपके लिए दुआ करने वाला होगा? कोई हाथ उठाकर दुआ करने वाला होगा? यही औलाद अगर आप इनको मदारिस दुनिया के अंदर कुरान मजीद की तालीम दिलाएंगे तो ये आपके लिए दुआ करेंगे। इसलिए कुरान मजीद की तालीम को ज़रूरी समझते हुए जो उलूम दीनिया है उसके ऊपर, उलूम दीनिया के ऊपर दुनियावी उलूम को फौकियत दीजिए। जब तक कि हम दुनियावी उलूम के ऊपर दीनी उलूम को फौकियत नहीं देंगे, ना हमारी दुनिया बनेगी ना आखिरत बनेगी। यकीनन हम स्कूल की तालीम के खिलाफ नहीं है, लेकिन जाहिर बात है जब बच्चा छोटा बच्चा है, 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, 8 साल का है, तो उस बच्चे के ऊपर बोझ चला जाता है। फिर वो थका हारा मदरसे में आता है, वो उस तरह तालीम नहीं हासिल कर सकता जैसी तालीम उसको हासिल करनी चाहिए। इसलिए आप भी फिक्र से उनको भेजिए। पहले माएँ किरदार अदा करती थी बच्चों की तरबियत का। आज से 30 साल 40 साल कबल तक माएँ बच्चों की तरबियत का किरदार अदा करती थी। आज जैसा आपने देखे कि जैसे उलमाए किराम ने जो हदीस पढ़ी, मैंने भी हदीस पढ़ी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। यहाँ बैठे हुए जो बच्चे हैं ये आपको बता देंगे कि इस हदीस का मतलब क्या है, इसका मायने क्या है और ये कितनी हदीस है। यही बच्चे बताएंगे आपको। क्यों? क्योंकि इन्होंने मदरसे के अंदर आकर के तालीम हासिल की। इसका मतलब यह है कि 40 साल तक ये सिलसिला चलता रहा, आज से 40 साल कबल तक कि माएँ बच्चों को दीन की तालीम देती थी। पहला मदरसा माँ की गोद होती थी और वो बच्चों को ऐसी तरबियत दी जाती थी कि वो बच्चे माओ की गोद से जुनैद बगदादी पैदा होते थे, हजरत ख्वाजा अजमेरी पैदा होते थे, हजरत शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस ज़ैनबी रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते थे, मुफस्सिर बनते थे, मुफ्ती आज़म बनते थे। आज हमारी माओ की कोख से ऐसी औलादें नहीं पैदा हो रही और जो दीन का फरीज़ा अंजाम दिया जा रहा है वो माओ का काम आज मदारिस दुनिया में किया जा रहा है। यही बच्चे यहाँ आकर तालीम हासिल करते हैं। यहाँ पर इनको खाने की सुन्नतें बताई जाती है, यहाँ पर इन्हें सोने की सुन्नतें बताई जाती है, हर तरह की दुआएं बताई जाती है। दीन इस्लाम, इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम, हमारा दीन मुकम्मल हो गया। ऐसा मुकम्मल दीन किसी को नहीं मिला जैसा मुकम्मल दीन हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया है। हमसे पहली उम्मतों में नबी आए, 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में मबूस हुए, लेकिन किसी भी नबी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना दीन मुकम्मल नहीं किया था। हमारी खुशकिस्मती है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये एजाज़ इनायत फरमाया और हमको मुकम्मल दीन इनायत फरमाया। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है क़यामत तक ये दीन महफूज़ रहेगा। इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जो आता है वो छोटा है, दज्जाल है, कज़्ज़ाब है।
हमारे इस मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो आप जानते हैं। लोग हमसे सवाल करते हैं, मौलाना आप ये जो बात देते हैं इसमें अकबर बादशाह का जिक्र क्यों करते हैं? लोग सवाल करते हैं क्यों? क्योंकि हमने हमारे वतन अजीज के रहने वालों को दीन इस्लाम का अब तक मफहूम नहीं सिखाया। इस मुल्क में एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, चंगेज खान। ये बच्चे को जरा 2 मिनट बिठा लो, मेरी बात खत्म हो जाए। चंगेज खान एक बहुत जालिम बादशाह गुजरा है, उसकी तारीख में मैं नहीं जाना चाहता, बस मुख्तसर आपको बता दूं। चंगेज खान का जो वली अहद था, उसका बेटा था अलाउद्दीन खान नाम था। एक दफा फरमान जारी किया कि हम शिकार पर जाएंगे, शिकार पर जाएंगे और उस इलाके के इर्द गिर्द जहां तक नजर जाती है कोई शख्स नजर नहीं आएगा, अगर नजर आया तो सजा तो मुस्तहिक होगी। चंगेज खान का बेटा निकला और जब निकला जंगल में पहुंच गए शिकार करने के लिए। बीच रास्ते में एक शख्स नजर आया, वली अहद का बेटा का बादशाह का। जाहिर बात है चाय से ज्यादा तितली गर्म होती है। तो जब देखा कि फला शख्स जो घूम रहा है तो गिरफ्तार करने का हुक्म चंगेज खान के बेटे ने अपने जो गुजरा थे उनको दिया। गिरफ्तार कर लिया गया, बादशाह हुजूर की अदालत में हाजिर कर दिया गया। चंगेज खान के बेटे ने पूछा कि भाई क्या बात है, तुमको हमारा हुक्मनामा नहीं मिला? तुमने जो यहाँ घूम रहे खुलेआम, तो तुम्हें ये पता नहीं था कि हम आने वाले हैं? हमने ये फरमान जारी किया था कि इस इलाके के इर्द गिर्द कोई शख्स नजर नहीं आएगा। फिर क्या बात? वो बेचारा कहने लगा कि हुजूर मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मेरी कोई ज़रूरत नहीं, इसकी वजह से मैं यहाँ बाहर निकला हूँ। अगर मुझे आपका फरमान मालूम होता तो यकीनन मैं बाहर नहीं आता। जवाब मकबूल था, लेकिन वली अहद था, उसने एक सवाल किया, ठीक है ये बता कि तू अच्छा है या मेरा ये जो कुत्ता मेरे साथ शिकार पर चलता है ये अच्छा है? वो बेचारा परेशान हुआ, उसने पूछा, दिल में सोचने लगा कि अगर मैं ये कह दूं कि मैं अच्छा हूं तो ये कहेगा कि मेरा जो कुत्ता है बादशाह का वो तुझसे ज्यादा अहमियत वाला है कि तू अजीज है। और अगर मैं ये कह दूं कि ये कुत्ता नहीं बल्कि मैं अच्छा हूं तो जाहिर बात है वो कहेगा कि मैं भी इंसान हूं और तू भी इंसान है। तो यानी तेरा मतलब है कि कुत्ता तेरे से अच्छा है। सोच में पड़ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हिदायत पैदा हुआ। जवाब दिया उसने कि बादशाह हुजूर अगर मैं ईमान पर मरा तो मैं इस कुत्ते से अच्छा हूँ, और अगर मेरा खात्मा ईमान पर नहीं हुआ तो ये कुत्ता मुझसे अच्छा है। वो भी सोच में पड़ गया ये ईमान क्या है। अल्लाह ने उसको फौरन बुलाया, खरीद किया, ये बता कि ये तेरा ईमान क्या है। वो कहने लगा, फिर ईमान की बात बताया, मेरा ईमान अल्लाह एक है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, इसके बाद कोई दीन नहीं आएगा, कुरान मजीद आखिरी किताब है। ये सारी चीज़ें जब उसने बताया तो वो कहने लगा कि तेरा दीन तो मुझे समझ में आया, लेकिन चूंकि मैं वली अहद हूँ, मैं बादशाह नहीं हूँ। जब मेरा बाप मर जाएगा तो ये एजाज मुझे मिलेगा कि मैं बादशाह बन जाऊँगा। जब तक मैं वली अहद रहूँगा तब तक मैं ये काम नहीं अंजाम दे सकता। वो मैंने जरा खामोश करो। वली अहद का ये सुनने के बाद उसने कहा कि अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप जाइए और जब बादशाह मैं बन जाऊँ तो मेरे पास आ जाए, अपने दीन की दावत देकर और ईमान आकर के मुझे बता देना, और ये मामला पूरा बता देना कि फला फला जगह फला फला तारीख में ऐसा मामला हुआ था, हमारी मुलाकात हुई।
तो देखिए मैं ईमान पर क्या करता अल्लाह को भागते ये जुमले। इधर ये चले गया चंगेज खान के पास, कुछ दिनों के बाद चंगेज खान दुनिया से रुखसत हो गया। यहाँ पर ये जो थे ये मरज़ुल वफात में थे, आखिरी वक्त में थे। बेटे को बुलाया, अपने बेटे मैं एक वसीयत करके जा रहा हूँ दुनिया में, मैं तुम्हें एक वसीयत करके जा रहा हूँ कि बादशाह जो है वो अब बादशाह चंगेज खान का बेटा अलाउद्दीन खान बन गया है, और आप जाकर के मुझे दीन की दावत, मेरे बीवी के ईमान की दावत जो है, जो मैंने तुम्हें बताया, ये जाकर के अलाउद्दीन खान को बताना। जाहिर बात है मेरी उम्र जो है आपकी चल रही है, मैं तो नहीं कर सकता। बेटे ने वसीयत को समझ लिया, बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। जब देखा तो दरबारी ने बादशाह को रुकाने की हर मुमकिन कोशिश की, देखा कि बादशाह को जाना मुमकिन नहीं है, तो उसने एक तरीक़ेकार निकाला। फिर रात के आखिरी हिस्से में जब सब सो जाते हैं तो वो कूद करके बादशाह के महल के अंदर जो शहर था बीच में, वहाँ जाकर के खड़ा हो गया और वहाँ पर अल्लाहु अकबर अजान देने लग गया। जब अजान दिया तो बादशाह की नींद खराब हुई, सारे दरबारी उठे और देखे कि कौन है। बादशाह ने हुक्म हुआ कि जाओ गिरफ्तार करके लाओ, कौन है जो ये हमारी नींद खराब कर रहा है, लाया गया। तो अलाउद्दीन खान ने पूछा कि भाई क्या बात है, तुम इतनी जोर जोर चिल्ला रहे हो, क्या बात है, क्या है तुम्हारा मामला, बीच में खड़े रहकर तुम जो चिल्ला रहे हो, बिल्कुल हमारी नींदें खराब कर दी, ये कोई तरीका है बादशाह के वहाँ आने का। तो वो कहने लगा कि बादशाह हुजूर सारी तरकीबें मैंने इस्तेमाल कर ली, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, यही आखिरी रास्ता बचा था जो मैंने इस्तेमाल किया। लेकिन ये बात मुझे आपके सामने अर्ज करनी मेरे बाप की वसीयत है, जो मेरे बाप ने मुझे वसीयत की मेरे लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये कोशिश की। आप फला जगह एक दफ़ा शिकार के लिए गए थे, पूरा मामला उसने सुनाया, वहाँ मेरा ऐसा बाप मिला था जिसने आपको ईमान बतलाया था, वही बताने के लिए आया। तो ये जुमले सुन करके अलाउद्दीन खान ने सिर्फ एक जुमला कहा कि जब से तख्त पर बैठा हूँ, जब से लेकर आज तक मैं उसी शख्स के इंतजार में हूँ, कहाँ है वो शख्स, कब आएगा और मुझे ईमान बतलाएगा। तो हमारी माएँ और बहनें आप समझे कि ये बच्चे अगर दीन नहीं होगा तो जो इर्तिदाद की लहर चली है मुल्क के अंदर बहुत खतरनाक है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसी वाक़े को एक शेर में बयान किया। चंगेज़ खान अरे आया फितने तातार के अफसाने से, अरे आया फितने तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। ये जो अलाउद्दीन खान का पूरा वाक़या है, अल्लामा इकबाल ने इस शेर के अंदर उसको ज़ब्त किया। आज आप जानते हैं, आप अपनी नज़र को दौड़ाइए, दुनिया में रहते हैं, दुनिया की चीज़ों को देखने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में पैवस्त है। जैसे टच स्क्रीन मोबाइल काम करता है, उससे ज़्यादा तेज हमारा दिमाग काम करता है। आप दिमाग को दौड़ाइए और देखिए कि जो मुर्तद होने की इब्तिदा की खबरें आ रही है, जो गैर मुस्लिमों के साथ बच्चियों की जाने की खबरें आ रही है, कोई एक बच्ची ऐसी नहीं मिलेगी कि उसने मदारिस के अंदर आकर के, मकातिब दीनिया के अंदर आकर के दीन की तालीम हासिल की हो। उलमा ने किताबों के अंदर लिखा है कि अगर आपने अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दी, खतरा इस बात का है कि जब मरेगा मुर्तद होगा। इसलिए कुरान मजीद की तालीम, इसकी अहमियत को समझें। जब मदरसे से मुतालबा किया जाए, बच्चों को भेजने की फिक्र करें। आपकी भी दिलचस्पी, हम चाहते हैं, आप ये बोलते हैं कि तालीम दोनों हाथ से बचती। अगर हम बुला रहे हैं तो सामने वाला अगर नहीं आता है तो कोई मतलब नहीं। इसलिए आप भी इस अहमियत को समझें, अपने बच्चों को मदरसे की तालीम दीजिए। ये बच्चे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन जहाँ बेसरो सामानी का आलम होगा, वहाँ ये बच्चे आपके लिए खड़े होंगे और यही कोशिश करेंगे। कोई दुनिया के अंदर कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ कुरान मजीद ऐसी चीज़ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कल क़यामत के दिन चाहता है। कुरान मजीद को हमने मामूली समझ रखा है, ये हमारी बहुत भक्ति है। दुनिया की तालीम के लिए हम 8 घंटे देते हैं, उसके ऊपर 4 घंटे ट्यूशन में देते हैं। मदरसे के लिए
इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक के बाद सुबह की तरतीब भी बने। और ये जो बच्चों ने आज पढ़ा है इससे आप मुतमईन है नहीं? जोर से बोलिए, हाथ उठा कर तारीफ कर बस। तो अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जहां आप रहते हैं, महल्ले में, बिल्डिंग में, सोसाइटी में, अपने आस पास के लोगों को इस बात की फिक्र दिलाएं कि मदरसे के अंदर बच्चों को डलवाने की फिक्र आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ बच्चों को भेजना ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए इस मदरसे को आबाद करने की फिक्र करें। सुबह में भी मदरसा चलेगा और इंशाअल्लाह इन्हीं में से बच्चे हाफिज कुरान के लिए भी तय किए जाएंगे। कुछ बच्चे जो आने वाले दिनों में हाफिज भी बनेंगे। कल अगर बस्ती किसी मस्जिद में नमाज पढ़ाने की नौबत आ गए तो ये बच्चे बस्ती की खड़े होकर नमाज भी पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। और इस मदरसे का अधूरा काम आपको नजर आ रहा है, ये भी करना है। दूसरी बात, अब आप लोग सामने बैठे हैं, इसके लिए हम आपसे माजरत खा हैं क्योंकि ऊपर की मंजिल का काम होना बाकी, वो हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगले साल इससे अच्छा जलसा होगा और मस्तूरात के लिए ऊपर एलईडी का भी इंतजाम किया जाएगा। और आने वाले दिनों में हम इंशाअल्लाह यहाँ पर मस्तूरात के लिए बयानात का भी सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे मर्द हजरात के लिए भी बयानात का सिलसिला मुस्तकिल शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो इन सब चीज़ों के लिए आप तमाम हजरात का ताउन होना चाहिए कि जब भी मदरसे की तरफ से कोई चीज़ की आवाज़ दी जाए आप लब्बैक करें, उस पर तायीद करें और अपने बच्चों को फिक्र से मकतब में भेजने की फिक्र करें। साफ सुथरे हम जैसे स्कूल में भेजते हैं, मैंने अभी कहा कि उलूम दीनिया नंबर 1 पर रखना है, उलूम दुनियावी उलूम को नंबर 2 पर रखना है। जब तक हम दुनिया में उलूम को दूसरे नंबर पर नहीं रखेंगे हमारी बच्चियों के अंदर तरबियत नहीं आएगी, हमारे बच्चों के अंदर तरबियत नहीं आएगी। अगर बच्चियों के अंदर तरबियत नहीं आएगी तो ये अच्छी माँ, अच्छी सास, अच्छी बहू, अच्छी बहन और अच्छी बेटी का किरदार कभी नहीं निभा सकती। बड़े दीनदार होने से कुछ नहीं होगा, अगर हमने बच्चियों को दीन की तालीम सही नहीं दी तो ये कोई किरदार निभाने के लायक नहीं रहे। जैसा माहौल हमारे आसपास है ये हम जानते हैं, इसलिए वालिदैन की जिम्मेदारी है एक काम जरूर करें। आज हमने मोबाइल दे रखा है, उन्हें आम बच्चियों को मोबाइल दे रखा है, लेकिन उसकी निगरानी करना ये आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों के मोबाइल चेक करना ये आपकी जिम्मेदारी है। जब रात हो जाए उसका एक वक्त तय कीजिए, कुछ घंटे तय कीजिए कि इतने वक्त से इतने वक्त ही तुम्हें मोबाइल। इसकी एक तरतीब हो सकती है नहीं हो सकती है। भाई मैं कुछ कह रहा हूँ कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो इसकी एक तरतीब ये भी है कि आप मोबाइल चेक करें, उनके एक निज़ाम बनाएं, वक्त दें कि कितने घंटे से कितने घंटे तक स्कूली तालीम के नाम पर कौन से ग्रुप उनके व्हाट्सएप में आ रहे हैं, ये चेक करना अव्वली जिम्मेदारी माँ बाप की। इन सब की फिक्र करें और मदरसे को मजबूत बनाने की फिक्र करें। और ये अधूरा काम बचा है, इस तरफ भी आपकी तवज्जो है, ये भी करना है, यहाँ की टाइल लगना है, ऊपर का हिस्सा मुकम्मल होना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों को दीन दुनी रात चौकी तरक्की अता फरमाए, इनके वालिदैन को तरक्की अता फरमाए, हमारे वालिदैन मुहतरम को सेहत कामिला आजिला कायमा मुस्तमिरा नसीब फरमाए। उनकी दूसरी आँख में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, खून उतर गया है, शुगर बढ़ जाने की वजह से आपसे दुआ है कि उसके लिए दुआ करें, खून सूख जाए इंशाअल्लाह। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इनामत तकसीम किए जाए। अनीस भाई की जानिब से बच्चों को इनामत 500 रुपये दिए गए हैं। 27 बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ा है, वो 27 बच्चों में शायद 20-20 रुपये से तकसीम करें इंशाअल्लाह। इकराम का बच्चों पहला इनाम जो दिया जा रहा है वो इनामात तो इस मरतबा हमने सब बच्चों के लिए एक जैसे रखे यकसा, लेकिन उसमें
अव्वल इनाम हासिल करने वाली जो तालिबा है वो जिया सगीर शेख है। इस बच्ची ने पूरा साल मेहनत से पढ़ाई की और इनके वालिदैन भी मुबारकबाद के हकदार है। मैं जिया सगीर शेख को दावत देता हूँ, आप लोग आइए सामने। यार जल्दी आ जाओ, 2 मिनट उसमें। नीचे बैठो। ये सब नीचे बैठो। सब बच्चे खामोशी के साथ बैठे रहे। कौन है आदम? आदम हबीबा नीचे बैठो। दो साइड में पीछे जा, एकदम पीछे। ये अव्वल इनाम हासिल करने वाली तालिबा है। आगे अभी आ जाओ। बच्ची को 50 रुपये मेरे 50 रुपये हजरत की तरफ से भी मेरी बच्ची को दे दें। दूसरा इनाम हासिल करने वाला तालिब इल्म अफ़ान अजमत अली खान है। इनके वालिद मोहतरम बेटे हैं, मैं उनको दावत देता हूँ कि वो भी आए सर। अफ़ान को भी हजरत की तरफ से 50 रुपये इनाम से मिलेगा। ये इनाम भी हमारी तरफ से, मदरसे की तरफ से बच्चों को दिया जाता है, तमाम बच्चों को। अब तीसरा इनाम हासिल करने वाला तालिब इल्म है इमरान अजमत अली खान। 50 रुपये भी इस बच्चे को नकद इनाम दिया जाए। चौथा इनाम हासिल करने वाला है रेहान अजमत अली खान। 50 रुपये भी इस बच्चे को इनाम दिया। और 5वां इनाम हासिल करने वाली तालिबा है खुदेजा मुबारक चावल। इनके घर से कोई आया? आ जाओ खुदेजा। 50 रुपये भी इस बच्ची को इनाम में दिया। अपनी है नहीं यार, उसके अब्बू आए थे, गए वो छोड़ के गए। एक बच्चे को मैं बुलाता हूँ। बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ। आयशा नसरुद्दीन सैयद। इब्राहिम उस्मान अंसारी। इकरा आ जाओ इकरा, चलो जल्दी। उमैमा, सादिया सब वहाँ से आ जाओ, जल्दी आ जाओ भैया। सब बच्चों को लड़के रुक जाओ, लड़कियों को पहले देंगे फिर लड़कों को देंगे। सादिया आ जाओ जल्दी, यहाँ से आ जाओ, आ जाओ चलो। सादिया, देवा, चलो बच्चों को एक चॉकलेट भी दी जाएंगे। 2 मिनट रुक जाओ, कोई जाने की जल्दी मत करो। 2 मिनट अरीम आ जाओ, आयशा, अनम, चलो आइए, आप आ जाइए, आइए।
जल्दान